Today we are starting with Maths Chapter 2, Relations and Functions. See, we started with sets, right? Sets have applications in many branches of mathematics: logic, philosophy, geometry, probability. Relations in mathematics are analogous to the relation in our daily life. Like relation between mother and a son, brother and a sister. We can have mathematical relation between two elements of two different sets. So we started with sets and now we are relating the elements of the two given sets. So the relation in mathematics is basically expressing the relationship between elements of two different individual sets in mathematical form. That is basically what we are going to do. So we are going to study three basic concepts in this chapter: Cartesian product of sets, relations, and functions. These three will be our target topics: Cartesian product of sets, relations, and functions. Out of which the larger concept, which is basically going to be with you for a long time, is functions. फंक्शंस एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारे साथ बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला. रिलेशंस 12th में भी होगा, फंक्शंस भी 12th में होगा, रिलेशंस 12th में भी होगा, लेकिन रिलेशन का जो एप्लीकेबिलिटी है वो इतना ज्यादा नहीं है जितना फंक्शंस का है. ठीक है. सो ये रिलेशन और फंक्शन दोनों को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, व्हिच इज आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे. लेट्स स्टार्ट. So to understand what is Cartesian product of sets, we have to understand what is an ordered pair. An ordered pair is pair of entries in specified order. This is also called order 2 tuple. Order 2 tuple. Okay. So we generally call it ordered pair. And what is ordered pair? जैसे तुम्हारे coordinate geometry में जो coordinates of a point होते हैं, x coordinate and y coordinate, that is basically x comma y, right? Maybe let's say 2 comma 3. इसका मतलब क्या है? x coordinate is 2 and y coordinate is 3. This is nothing but ordered pair. Why is it an ordered pair? Because इसको एक specific order में लिखा जाना जरूरी है. दूसरा, उनके बीच में कॉमा होना चाहिए और उनको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखना है. That is an ordered pair. ठीक है. यहाँ पे लिखा है that if the two entries are separated by a comma and enclosed within brackets, if A and B are any two sets, then by an ordered pair of elements we mean a pair A comma B such that small a, the first element small a, belongs to the first set capital A, and small b, the second element small b, belongs to the second set capital B. In that order. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. In that order. मतलब ऑर्डर्ड पेयर में किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. याद रखो, A comma B is never equal to B comma A unless A and B are the same things. अगर A और B दोनों सेम है तो तुम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो. मतलब अगर मेरा ऑर्डर्ड पेयर में A की वैल्यू भी 2 है और B की वैल्यू भी 2 है तो मैं 2,2 लिखूं या फिर 2,2 लिखूं, दोनों सेम ही है, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन अगर A, B अलग अलग है, सपोज B की वैल्यू है 3, तो मुझे 2,3 ही लिखना पड़ेगा. अगर मैं इसको 3,2 लिखता हूं, इट वोंट बी इक्वल टू 2,3. इट वोंट बी आवर ऑर्डर्ड पेयर. The set of all ordered pairs of elements A, B such that small a belongs to set A and small b belongs to capital B is called the Cartesian product of two sets A and B, and it is denoted by A cross B. तो A cross B क्या है? A cross B is Cartesian product of two sets A and B. याद रखना, A cross B, कैपिटल A cross कैपिटल B क्या है? Cartesian product of two sets A and B. ठीक है. तो A cross B क्या होता है?
A cross B is a set of all ordered pairs such that the first element of the ordered pair belongs to set A and the second element of ordered pair belongs to set B. मतलब A cross B is a set which is known as Cartesian product of two sets, ठीक है, which has got all ordered pairs within itself. ठीक है, चलो अभी इसके ऊपर कुछ सॉल्व एग्जांपल देखते हैं. सॉल्व एग्जाम्पल थोड़ा लेट आ रहा है शायद, उसके पहले कुछ चीज़ें वो लोग ने बताई है. लेट्स सी क्या है. लेट्स जूम इन अ लिटिल बिट. ओके, ठीक है, क्या है यहाँ पे देखते हैं. देखो, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से इक्वल है और दोनों के एलिमेंट्स तुम्हें अलग अलग लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से इक्वल है, इसका मतलब है वो जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है वो सेम ही होंगे. इफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर A, B is equal to second ordered pair C, D, this is true if and only if. ये जो IFF है इसका मीनिंग है if and only if. If and only if A is equal to C and B is equal to D. ठीक है, A cross B and B cross A are different sets if A is not equal to B. A cross B में क्या होगा, पहले सारे A cross B क्या है, what is A cross B? A cross B is nothing but Cartesian product. Cartesian product of what? Cartesian product of two sets A and B, right? A cross B is Cartesian product of two sets A and B which has got all ordered pairs of A and B, but first element would be of the set A and second element would be of set B. And B cross A would be Cartesian product of B and A, जहां पे पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट B से होगा और दूसरा एलिमेंट सेट A से होगा. ये दोनों डिफरेंट है जब तक A और B इक्वल ना हो. मतलब A और B अगर इक्वल है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A भी इक्वल होंगे. A क्रॉस B नल सेट होगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी सेट नहीं होगा when A और B both, when one or both of A and B are empty. मतलब A भी empty है, या तो A empty है या तो B empty है या तो A और B दोनों empty है, तो A क्रॉस B भी empty होगा, नल सेट होगा. ठीक है, तो ये तीन जो यहाँ पे चीजें लिखी हैं दैट इज बेसिकली यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर की हमने डेफिनेशन देखी. ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन पढ़ा हमने ऑर्डर्ड पेयर से, और कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर उनकी हमने तीन प्रॉपर्टी को समझा यहाँ पे. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा. मैं इसलिए कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमको एग्जांपल करने हैं. ठीक है, तो तब तक तुम सिर्फ जो मेटाफोरिकली मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो. नेक्स्ट इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट. अब ट्रिपलेट वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि ट्रिपलेट का मतलब होता है कि एक जो तुम्हारा सेट है, छोटा सा सेट नहीं बोलेंगे इसको, एक जो ग्रुप है उसमें तीन एलिमेंट होंगे और वो तीनों एलिमेंट के बीच में कॉमा होंगे, तीनों को ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करेंगे, तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे. पेयर में तो दो ही चीजें होती है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होंगे. और ये तीनों एलिमेंट सेट ए, सेट बी और सेट सी से बिलोंग करेंगे. ठीक है, इन दैट ऑर्डर, याद रखना इन दैट ऑर्डर बहुत जरूरी है यहाँ. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर्ड थ्री ट्यूपल. पहले मैंने जो बताया था वो क्या था, ऑर्डर्ड टू ट्यूपल. ये है ordered three tuple. Okay. The set of all ordered triplets is called Cartesian product of three sets A cross B cross C. ठीक है, A cross B cross C का मतलब क्या होता है, ordered triplet such that first element belongs to the first set, second element belongs to the second set, third element belongs to the third set. Similarly, we can define Cartesian product of n sets. अगर मेरे पास बहुत सारे सेट्स हैं, A1, A2 up to AN, n सेट्स है. कितने सेट्स है, n. Then by ordered n tuple elements we mean n tuple such that
एक तुम्हारा ग्रुप बनेगा जिसमें n एलिमेंट्स होंगे a1 a2 a3 अप टू an, such that first element will belong to set a1, second element will belong to set a2, third element will belong to set a3, and nth element will belong to set an in that order. The set of all ordered n tuples is called Cartesian product of n sets, that is a1 a2 an, and is denoted by a1 cross a2 cross a3 up to cross an, और briefly by यहां पे एक सिंबल नया आया है जो ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका मतलब है प्रोडक्ट, दिस मीन्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ from I is equal to 1 till I is equal to n of ith of ai का मतलब है all the sets a from I is equal to 1 till I is equal to n. So all these sets are multiplied with each other. Multiplied मतलब उनका प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट लिया है मतलब क्या है, अरे मल्टीप्लाई मतलब वो मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, प्लीज इसको याद रखो, ये क्रॉस देख के तुम मल्टीप्लाई समझ लोगे, नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर मैं सेट ए और सेट बी और सेट सी और जितने भी सेट्स को प्रोडक्ट लूंगा तो बेसिकली उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ये प्रोडक्ट वो मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोडक्ट नहीं है, इसको प्लीज याद रखो, ये हम लोग एग्जाम्पल से और क्लियरली समझेंगे। चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना और याद भी रखना पड़ेगा तुम्हें। इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स then number of ordered pairs in the Cartesian product of A and B, मतलब A क्रॉस B में कितने कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे A क्रॉस B में, वो हमें पता चल सकता है इस फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। अगर सेट A में 5 एलिमेंट्स है और सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं, सो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 20। टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 20, किसमें, एन ए क्रॉस बी में। तो फिर से मैं बताता हूं, अगर पहले सेट में 5 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 4 एलिमेंट है, ठीक है, तो इन दोनों सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा एन ए क्रॉस बी, उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, एन ए multiplied by nb, that is 5 multiplied by 4, that is 20, मतलब टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितनी होगी, 20, किसमें, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, याद रखना, ठीक है। सो या दैट्स अ फॉर्मूला। इसको और कॉम्प्लिकेट करके वो लोग ने समझाने की कोशिश की है कि अगर ए में m एलिमेंट्स है और बी में n एलिमेंट्स है तो a क्रॉस b में m n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर a और b फाइनाइट सेट्स है तो n a क्रॉस b कैन बी रिटन एज n a क्रॉस n b, and if a and b are non-empty sets and either a or b is an infinite set, and so is a cross b। अगर a और b में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट है तो a क्रॉस b भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सपोज ए क्रॉस बी को तुम्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो एक्स एक्सिस है उस पे पहले सेट का एलिमेंट मतलब सेट ए का एलिमेंट और वाई एक्सिस पे दूसरे सेट का मतलब सेट बी का एलिमेंट लेंगे और ऐसे करके उनको ज्वाइन कर देंगे, तो एक पॉइंट मिलेगा जहां पे हमें मिलेगा ए कॉमा बी, जैसे कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट वाला जो तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन पे जो लोकेशन होता है एक पॉइंट का, वैसे ही तुम्हें लोकेट करना है। देखो यहाँ पे इफ a इज इक्वल टू 1,2 एंड b इज इक्वल टू 3,4,5 ऑब्टेन a क्रॉस b एंड रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। नाउ सबसे पहले ऑब्टेन a क्रॉस b, देखो हमें पता है व्हाट इज a एंड हमें पता है व्हाट इज b, तो a क्रॉस b क्या होगा, तो हम लोग बारी बारी a के सारे एलिमेंट का b के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो पहला होगा 1,3, ये देखो 1,3, फिर होगा 1,4, फिर होगा 1,5, फिर होगा 2,3, 2,4, 2,5, कितनी ऑर्डर्ड पेयर होगी, कितनी ऑर्डर्ड पेयर हो गई यहाँ पे, 6।
6 ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, कैसे 6 आया ये पता चला। अच्छा मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है, 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 इंटू 3 कितने हैं, 6 है। 6 इधर, यस। अब सबको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो सपोज यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ भी मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहला 1,3 1,3 आएगा यहाँ पे, फिर आएगा 1,4 1,5। ठीक है, फिर आएगा 2,3 2,3 2,3 आएगा यहाँ पे, फिर आएगा 2,4 ठीक है 2,4 और फिर आएगा 2,5। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करना डॉटेड लाइन से सबको, सारे सेट्स को इंडिविजुअली, सारे ऑर्डर्ड पेयर को इंडिविजुअली। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये तो उससे भी ज्यादा इजी है। सपोज सेट ए है 1,2 और सेट बी है a, b, c। a क्रॉस b डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो सेट ए में 1,2 लिख 1 और 2 लिख दो, सेट बी में a b c लिख दो, फिर 1 और ए बी सी, 1,2 और ए बी सी, उनके बीच में कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं, तो 1, a 1, b 1, c, 2, a 2, b 2, c। तो 1a 1b 1c, 2a 2b 2c, ये हो गए तुम्हारे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, चलो फाइंड x एंड y इफ 2x, x प्लस y इज इक्वल टू 6, 2। अब ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये इस वाली ऑर्डर्ड पेयर से इक्वल है। So how to find x and y? So basically we are going to equate 2x with 6. That means x is equal to 6 by 2. That means x is equal to 3. And we'll equate x plus y is equal to 2. जिसमें x की वैल्यू 3 है, तो so 3 plus y is equal to 2. So y is equal to 2 minus 3. So y is equal to minus 1. So ordered pair में, if two ordered pairs are equal, then we can directly equate the corresponding elements of the ordered pair. We can equate 2x with 6 and we can equate x plus y with 2. So that's it. Okay, let set A be a comma b and set B be a comma b comma c. What is a cross b? So a cross b, अब ध्यान से देखना क्योंकि आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स। a क्रॉस b क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a and set b। Cartesian product of set A and set B is nothing but a set. Set of what? Set of all ordered pairs. So this will be A comma A. ठीक है, A comma A, comma A comma B, comma A comma C, comma B comma A, comma B comma B, comma B comma C. ठीक है, so this is the Cartesian product of A and B. Let's check. Absolutely correct. So if A cross B is equal to P comma Q, P comma R, M comma Q, M comma R, find A and B. Very easy. Set A will be, सेट ए में सारे पहले वाले फर्स्ट जो आते हैं नंबर्स, बिकॉज इट इज द फर्स्ट you can say set in the Cartesian product. So the first elements in all the ordered pairs will belong to set A. तो P set A से belong करेगा, अगेन P set A से belong करेगा, M और M। तो सेट A में सिर्फ P और M है, दो बार तो हम नहीं लिखते, रिपीट नहीं करते सेट में एलिमेंट्स। सेट B में कौन है, Q होगा और R होगा।
Q comma R. Let A and B be two sets such that number of elements in A is 5 and number of elements in B is 2. अच्छा, तो A में 5 एलिमेंट है और B में 2 एलिमेंट है. If A1, 2, A2, 3, A3, 2, A4, 3 and A5, 2 are in A cross B, and A1, A2, A3, A4 and A5 are distinct, find A and B. बहुत easy है. So A, set A will be, ये देखो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स देख लो, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट मिल गए. सो A1, A2, A3, A4, A5. ठीक है, ये हो गए सेट ए के एलिमेंट्स. सेट बी के एलिमेंट्स, सेट बी में देखो ये 2 ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे 2 3 2 3 2. ठीक है, तो 2 और 3 के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है. So basically set B will have only 2 and 3. Actually A5, 3 भी लिखना चाहिए था, उन्होंने लिखा नहीं है, पता नहीं क्यों. ठीक, so A1, A2, A3, A4, A5, 2, 3 देख लेते हैं. बिल्कुल सही. If P is equal to A, B, C and Q is equal to R, form the sets P cross Q and Q cross P. Okay, P cross Q, Cartesian product of P and Q in that order will be the set of all the ordered pairs A comma R, B comma R, C comma R. ठीक है, yes, so that's it. That is A comma R, B comma R, C comma R and Q cross P. ये क्या होगा? पहले Q का एलिमेंट, that is R comma A, R comma B and R comma C. बिल्कुल सही. अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करो, P क्रॉस Q और Q क्रॉस P एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. तुम बोलोगे वही तो एलिमेंट्स है, ये A है, यहाँ भी A है, ये R है, यहाँ भी R है, लेकिन वही तो पॉइंट है. ऑर्डर्ड पेयर का जो डेफिनेशन है, दैट इज द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक. ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन ये बोलता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उनमें जो एलिमेंट्स है उनका जो पोजिशनिंग है वो मैटर करता है. ठीक है, तो पोजिशन को मैं चेंज नहीं करना. Express x comma y such that x square plus y square is equal to 25, where x comma y belongs to whole number as a set of ordered pairs. Okay, देखो x comma y such that x square plus y square is equal to 25, मतलब x और y कुछ ऐसे नंबर है कि वो एक तो होल नंबर है और उनका स्क्वायर का सम 25 होता है. ठीक है, तो किस किस नंबर के स्क्वायर का सम 25 होता है? कौन से होल नंबर ऐसे हैं? देखो 16 प्लस 9 25 होता है. ठीक है, और क्या क्या होता है? 16 प्लस 9 25 होता है, और होल नंबर में तो माइनस नंबर ले नहीं सकते. और क्या 25 होता है? सोचो कौन से और दूसरे होल नंबर है? 4 प्लस 21 25, लेकिन 4 किसी का स्क्वायर है, 21 किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी होल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो 21 नहीं ले सकते. और क्या होता है? 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर भी, 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये भी तो हो सकता है. ओके, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं. चलो, पहला मेरा रहेगा वैल्यू 3,4. क्यों 3,4? क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 होता है. 3 और 4 दोनों होल नंबर है, तो ये एक हो सकता है. दूसरा 4,3. ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अगेन 25 होता है. फिर 0,5, 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 होता है. 5,0, इन दोनों का स्क्वायर भी 25 होता है. अब तुम बोलोगे ऑर्डर्ड पेयर में तो ऑर्डर मैटर करता है.
तो यहाँ पे हमने 3,4 और 4,3 ऐसे क्यों लिखा है? सही है, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन हमें दी है, हमें सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से एक्सप्रेस करने के लिए बोला है। हमें ये नहीं बोला है कि इसमें से फर्स्ट एलिमेंट इस पर्टिकुलर सेट से होगा और सेकंड एलिमेंट इस पर्टिकुलर सेट से, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ये दोनों एलिमेंट्स होल नंबर से बिलोंग करते हैं, ये हमें बोला है, बट दोनों अलग अलग इंडिविजुअल सेट से बिलोंग करते हैं ऐसा नहीं बोला है। तो मुझे लगता है मेरा आंसर करेक्ट है। लेट्स चेक। 05344350 बिल्कुल सही, मैंने जो लिखा था वही निकला। A few elements of A cross B are 1,7, 1,10 and 3,12. A is 1 2 3। अच्छा, A दे दिया है तुम्हें, 1 2 3 है, और कुछ एलिमेंट्स है A क्रॉस B के 1,7, 1,10 and 3,12. Then obtain the remaining elements of A cross B such that number of A cross B is least. Oh. अब देखो, सेट ए में कौन कौन है? 1 है, 2 है और 3 है। इसका मतलब है जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम दीज 3 जो हमें दिए हुए, उसमें एक तो 1,7 होगा, क्योंकि 7 मुझे दिया हुआ है और 2 मुझे पता है कि सेट ए का एलिमेंट है, तो 2,7 भी होगा। 7 दूसरे वाले सेट बी से बिलोंग करता है और 2 सेट ए से बिलोंग करता है, मुझे पता है। एंड आई हैव टू कीप नंबर ऑफ ए क्रॉस बी लीस्ट, मतलब जो जो इन्वॉल्व हो सकता है उसको तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, 3,7 भी होगा, ठीक है। फिर 1,10 है दिया हुआ है, ठीक है, 1,10 दिया हुआ है, तो 2,10 भी होगा, 2,10, ठीक है। फिर 3,10 भी होगा, ठीक है। फिर 3,12 दिया हुआ है, 3,12, तो 1,12 भी होगा, 2,12 भी होगा और 3,12 भी होगा, ठीक है। तो मैंने जितने एलिमेंट्स नोन है सेट ए के जो सारे दिए हुए, सेट बी के भी एलिमेंट्स इनडायरेक्टली दिए हैं 7, 10 और 12, उन सबके साथ सेट ए का ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। मतलब ए क्रॉस बी के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो सारे मैंने लिख दिए, 1,7, 2,7, 3,7, क्योंकि 1,7 दिया था तो उसको इंक्लूड कर दिया, और बाकी 2,7 और 3,7 जो इंफॉर्मेशन है उससे मैंने लिख दिए। फिर 1,10, 2,10, 3,10 एंड 1,12, 2,12, 3,12, और कुछ भी इसमें मुझे नंबर नया ऐड करना नहीं है, क्योंकि मुझे ए क्रॉस बी को लीस्ट रखना है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, विच इज लीस्ट, विच इज लीस्ट। मेरे हिसाब से 9 होना चाहिए जो लीस्ट है। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। अच्छा, इफ P, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ P इज 1,2 फॉर्म द सेट P क्रॉस P क्रॉस P, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन एक सेट का खुद के साथ ही ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनाने के लिए बोल रहा है। सो P क्रॉस P विल हैव द ऑर्डर्ड ट्रिपलेट एज फॉलोज। अब देखो, फर्स्ट सेट भी यही है, सेकंड भी यही है और थर्ड भी यही है, ठीक है। तो एक होगा 1,1,1। तुम बोलोगे एक सेट में 3 एलिमेंट्स एक ही जैसे नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा कि ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है 1,1,1, ठीक है। और ये ऑर्डर ट्रिपलेट है, यहाँ पे नंबर रिपीट हो सकते हैं। ये एक एलिमेंट खत्म हुआ, अब दूसरा एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है। फिर हो सकता है 1,1,2, फिर हो सकता है 1,2,1, फिर हो सकता है 2,1,1, राइट। मतलब 2 की अलग अलग पोजीशन हमने ले ली, तो दो बार 1 लिया और एक बार 2 लिया। अब क्या होगा?
अब देखो 3 टाइम्स 1 हो गया एक बार, फिर 2 टाइम्स 1 हो गया अलग अलग पोजीशन में। अब आएगा 2, 2 की बारी आई है, तो क्या हो जाएगा ये अब 2,2,1। फिर क्या आएगा, फिर आएगा फिर आएगा 2,1,2 और फिर आएगा 1,2,2, राइट, 1,2,2 और फिर क्या आएगा लास्ट 2,2,2। ये सारे पोजीशंस में हमने ये दोनों को ट्रिपलेट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इससे ज्यादा कोई पोजीशन नहीं हो सकती, ना कोई एलिमेंट्स है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे स्क्वायर ये करली ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब ये ऑर्डर ट्रिपलेट ऑन सेट पी मैंने बनाया। कितने एलिमेंट्स हुए इसमें? 8 एलिमेंट्स होने चाहिए, बिकॉज सेट पी में 2 एलिमेंट है, तो उसके ऑर्डर ट्रिपलेट में 2 × 2 × 2 8 एलिमेंट्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है, करेक्ट है। लेट्स चेक। बिल्कुल सही, परफेक्ट। ओके, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b is equal to 5 7 6, determine a cross b and represent it graphically. Just a moment. ओके, ए क्रॉस बी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, बी क्रॉस ए को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है या नहीं ये बताना है, और नंबर ऑफ ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ बी क्रॉस ए इक्वल है क्या नहीं ये भी बताना है तुम्हें। कूल। पहले तो ए क्रॉस बी ढूंढना है, ठीक है। सो ए क्रॉस बी, डिटरमाइन ए क्रॉस बी एंड रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, तो पहले ढूंढना तो पड़ेगा ये क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी में हम लोग लिखेंगे 1,5 1,7 1,9, पहले ए का एलिमेंट फिर बी का एलिमेंट, ठीक है। फिर 2,5 2,7 2,9, फिर 3,5 3,7 3,9, फिर 4,5 4,7 4,9, ठीक है। तो ये सारे 1 के साथ, 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 के साथ, सबके ऑर्डर्ड पेयर हमने बना लिए ए क्रॉस बी के। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको चाहिए शेप, ओवल शेप ले लेते हैं, ठीक है, और एक ओवल शेप। ओके, अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 7 9 5 7 9। ओके, ए क्रॉस बी, तो 1,5, पहले सबसे 1 को 5 से ज्वाइन करेंगे सबसे पहले, फिर 1,7 1,9 एंड देन 2,5 2,7 2,9 3,7 3,5 3,9 और उसके बाद 4,5 4,7 एंड 4,9। तुम्हें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा,
लेकिन ये है ऐसा ही है ये। ठीक है, सारे एरोज डाल दो। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब बी क्रॉस ए तुम खुद ढूंढो, बी क्रॉस ए तुम खुद ढूंढो, और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम है कि नहीं वो बताओ। फिर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 होता है। तो एन नंबर ऑफ बी क्रॉस ए कितना होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 वो भी 12 होगा। तो ये तो आंसर हमें पता है कि यस आएगा। ये आंसर डेफिनेटली नो आएगा, क्योंकि अगर ए और बी सेम एलिमेंट सेम सेट्स नहीं है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मतलब दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी अलग अलग आएगा। बी क्रॉस ए को तुम डिटरमाइन भी कर सकते हो और ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये तुम्हें करना है, वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने एक गलती शायद की है यहाँ पे, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना था ग्राफिकली और मैंने इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। तो अगर मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आई नीड दिस टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से फर्स्ट पे मैं लिखूंगा 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मुझे लिखना है 5 7 9, 1 2 3 4 5 7 9। और 1 5, so I'm going to just, yeah, 1 5, 1 7, 1 9, 2 5, 2 7, 2 9। ठीक है, 3 5, 3 7, 3 9, 4 5, 4 7, 4 9। So these are the basically required graphical representations of your A क्रॉस B। मैंने यहाँ पे A क्रॉस B ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वैसे ही तुम B क्रॉस A बना सकते हो। ठीक है, जस्ट ग्राफिकल, ओके, नॉट डायग्रामेटिक। वैसे तुम्हें अभी ये भी समझ में आ गया दोनों, करेक्ट? ओके, लेट्स गो अहेड। Yeah, so that's your graphical representation of A cross B and B cross A over here. A cross B is not equal to B cross A, बिल्कुल सही है। And A cross B, A cross B is equal to N B cross A, दोनों 12। ओके, तो यहाँ पे I'm not much keen on doing this question because you have to represent A cross B and B cross A and A cross A and B cross B by arrow diagrams। एरो डायग्राम्स मतलब ये वाला डायग्राम जो अभी हमने ये ओवल में किया था, ये वाला। ठीक है, वैसे ही एक एरो डायग्राम तुम्हें इन सब के लिए बनाना है, ये यहाँ पे बना के भी दिखाया है। ठीक है, सो इफ यू वांट यू कैन डू इट, अदरवाइज स्किप इट, नो प्रॉब्लम। हमारा टारगेट ये नहीं है अभी, हमारा टारगेट ये नहीं है अभी, हमें कुछ और करना है। ठीक है, उस पर हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। So these are the arrow diagrams, this is how it looks like। Okay, look at this one।
if A is equal to 1 comma 2 and B is equal to 3 comma 4 and C is equal to 4 comma 5, find A cross B union C. So let me first write what is A. A is 1 comma 2. B, what is, sorry, B union C. B union C. We can directly write B union C. See, B union C will be 3, 4, 5. Now what we have to do is find A cross B union C. So A cross B union C will be 1 comma 3, 1 comma 4, 1 comma 5, 2 comma 3, 2 comma 4, 2 comma 5. Right, so that is A cross B union C. Correct. Let's go ahead. Okay, let A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 3 comma 4 and C is equal to 4, 5, 6. Find A cross B intersection C. This is easy. You can also try. Pause the video and try this, please. I'm also trying over here. So B intersection C is what is common between B and C. So I can't see anything common between B and C other than 4. Okay, so A cross B intersection C is equal to 1, 2, 3. ऐसे भी लिख सकते हैं cross 4, which is 1 comma 4, 2 comma 4, 3 comma 4. That's it. That's it. Right? Let's go ahead. Okay. So here you have to verify. Let's do this one. Here you have to verify that A cross B intersection C is A cross B intersection A cross C. Okay. Let's first find what they are asking us to find. Okay. Let's find B intersection C. What will be B intersection C? B intersection C will be whatever is common between B and C, and B and C has only 4 in common. Okay, so A cross B intersection C. See, your LHS is A cross B intersection C. So as you can see, sets भी apply हो रहे हैं यहाँ पे, sets का भी application है. So set से ही हम लोग swiftly move कर रहे हैं towards relation, और फिर relation से move कर रहे हैं हम लोग, set से पहले हम लोग move कर रहे हैं towards Cartesian product, Cartesian product से move करेंगे relations, और relation से move करेंगे हम लोग functions की तरफ. तो ये बहुत ही एक स्मूथ जर्नी है जहाँ पे तुम एक बहुत ही एडवांस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हो, और तुम्हारा मोस्टली जो भी कैलकुलस भी समझो तुम, कैलकुलस जो तुम्हारा 11th-12th का कोर है वो पूरा फंक्शंस पे डिपेंड करता है. अगर फंक्शन ही ठीक से नहीं समझे तो कैलकुलस में तुम मार खाओगे, इसलिए तुम्हें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इसको. ठीक है, चलो. ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज ए क्या है, 1, 2, 3 क्रॉस 4. क्या होगा ये? इट विल बी अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 1, 4, 2, 4, 3, 4. ठीक है, सो ये हो गया LHS. RHS क्या होगा? RHS इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन सही तो है, A क्रॉस C. ठीक है, A क्रॉस B क्या है? A क्रॉस B is set of the Cartesian product of A and B, which is 1,
2, फिर आएगा 1,3, फिर आएगा 1,4, फिर आएगा 2,2, उसके बाद आएगा 2,3, उसके बाद आएगा 2,4, ठीक है, उसके बाद आएगा 3,2, फिर 3,3 एंड लास्टली 3,4. So this is A cross B. इंटरसेक्शन किसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है? A क्रॉस C. A क्रॉस C में क्या है? 1,4, I'm sorry, 1,4 is a Cartesian product which is basically a element of the set which is written inside round brackets. 1,4, 1,5, ठीक है, फिर 2,4, 2,5, फिर आएगा 3,4, 3,5. ओके, सो इनमें कॉमन क्या है? ओके, इनमें जो कॉमन है दैट इज बेसिकली 1,4, जो एक बार लिखना है तुम्हें. उसके बाद वी हैव गॉट 2,4, और उसके बाद है 3,4 सीधा, राइट? So 1,4, 2,4, 3,4 is what the final value of RHS is, and which is equal to LHS. So LHS is equal to RHS. It is verified. Easy है, simple है, right? तो अब ऐसे कुछ similar sums मैं drop करूँ या skip करूँ तो कोई problem नहीं होगा, right? You can definitely try them yourself, similar questions. क्योंकि sets तुम्हें पता ही है कैसे करना है. Sets तो तुमने काफी किए हुए. ओके, लेट ए बी एंड सी जो गिवन वैल्यूज है वेरीफाई. अब ये वेरिफिकेशन तुम खुद कर सकते हो, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस. ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस. ये तुम अभी ट्राई करोगे, आगे तुम्हारे लिए होमवर्क करना इजी हो जाएगा, बिकॉज यू नो वैसे ही टाइप के क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में आने वाले. चलो, वी आर अप्रोचिंग द एंड. मे बी 3-4 सम और है एंड फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एंड हो जाएगा. डन? ओके, लेट्स चेक. तो बी इंटरसेक्शन सी नल सेट आया होगा, और किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर सेट बनाओगे नल सेट के साथ तो नल सेट ही होने वाला. तो LHS मिल गया है. RHS भी नल सेट आया है. A क्रॉस बी और A क्रॉस सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो LHS RHS से इक्वल है. ओके, नेक्स्ट. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, प्लीज यहां पे ध्यान देना. मैं कैसे कर रहा हूं प्लीज इसको देखना, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा तुमको. हो सकता है ये बिल्कुल समझ में ना आए. ठीक है, तो ध्यान से देखो प्लीज. फॉर एनी 3 सेट्स A, B and C, प्रूव दैट. ये जो हॉट्स लिखते हैं ना, हॉट्स का मतलब है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. ठीक है, हॉट्स का और कोई मतलब मत निकाल लेना. इसका मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. डिफिकल्ट क्वेश्चन बेसिकली है. ठीक है, प्रूव दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. मतलब ये प्रॉपर्टी जैसा हो गया, जहां पे हमने ये जो क्रॉस है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो क्रॉस साइन है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर इंटरसेक्शन. ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है. तो प्रूव कैसे करेंगे? चलो, लेट a random ordered pair x comma y belong to the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A क्रॉस. जनरली ऐसे ही प्रूव करते हैं इसको. A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. एक रैंडम
ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कॉमा वाई, जिसको हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, therefore x comma y belongs to A and x comma y belongs to B intersection C। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्सपांड किया। एक्सपांड मतलब मैंने x कॉमा वाई को A से बिलोंग करता है ये लिखा, एंड इसलिए लिखा क्योंकि देखो यहां पे तुम्हें कौन सी साइन दिख रही है, मल्टीप्लिकेशन की साइन दिख रही है। मल्टीप्लिकेशन की साइन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि पहला एलिमेंट, ओ ओ ओ एक 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 गलती कर दी मैंने, एक गलती कर दी, एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए, पहला एलिमेंट, यस, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है, और दूसरा एलिमेंट वाई बी सेकंड सेट से बिलोंग करता है, मतलब बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दैट इज, इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y belongs to b, y belongs to b, y belongs to b इंटरसेक्शन c है, मतलब y b को भी बिलोंग करता है और y c को भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो दैट इज x belongs to a and y belongs to b and x belongs to a and y belongs to c। इसको ऐसे अलग अलग लिखना। ठीक है, x a से बिलोंग करता है, y b से बिलोंग करता है, एंड x a से बिलोंग करता है और y c से बिलोंग करता है। एक्चुअली एंड उसमें नहीं आएगा बीच में, मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक कॉमा डाल दूँ। दैट इज x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू c। ठीक है, ओके, दैट इज x कॉमा y, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, बिलोंग्स टू a क्रॉस b। क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखूं x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, इसका मतलब यही हो गया ना, x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। और इसका क्या मतलब हो गया, x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस c, एंड बीच में एंड रहेगा, सही है ना? ठीक है, दैट इज x कॉमा y बिलोंग्स टू, x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन, बिकॉज एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, a क्रॉस c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। बट x कॉमा y इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, तो एक रैंडम कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ली है हमने, तो इसका ये मतलब होता है कि कोई भी आर्बिट्री रैंडम पेयर अगर a क्रॉस b इंटरसेक्शन c से बिलोंग करती है, तो वो a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c से भी बिलोंग करती है। इसका मतलब है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ठीक है, अच्छा, इसका और एक तुम प्रूफ तुम्हें इसको कंटिन्यू करके लिखना पड़ेगा, इतना इनफ नहीं होगा, सो दैट्स अ बैड न्यूज फॉर यू कि इतना इनफ नहीं है। तो तुम्हें और क्या करना पड़ेगा, तुम्हें और इसको समझाना पड़ेगा आगे। कन्वर्सली, याद रखना है इसको, कन्वर्सली इफ x कॉमा y, एक मिनट, यहां पे मैंने एक गलती कर दी है, यहां पे आएगा साइन सबसेट का। क्यों सबसेट का? क्योंकि जो एलिमेंट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c से बिलोंग करता है वो a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c से भी बिलोंग करता है। इसका मतलब है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c।
तो ये सबसेट का साइन आएगा। अब हम उल्टा करेंगे, उल्टा गेम खेलेंगे। उल्टा क्या खेलेंगे बताता हूं। कन्वर्सली, इफ x comma y belongs to a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, कि अगर a क्रॉस b और a क्रॉस c से के इंटरसेक्शन से अगर x comma y बिलोंग करता है, देन x comma y belongs to a cross b and x comma y belongs to a क्रॉस c, वो दोनों से बिलोंग करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दैट इज x belongs to a and, सॉरी एंड नहीं, कॉमा एंड तो बीच में आएगा। x belongs to a कॉमा y belongs to b, y belongs to b and x belongs to a कॉमा y belongs to c, राइट? इसको हमने सिंप्लीफाई करके यहां पे नीचे स्टेप में लिखा। दैट इज, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो x तो a से ही बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज x बिलोंग्स टू सेट a, ये बात पक्की है। लेकिन y b से भी बिलोंग करता है एंड y c से भी बिलोंग करता है, मतलब x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट इज x belongs to, sorry, x comma y belongs to, x comma y belongs to a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। x comma y किससे बिलोंग करता है? x comma y एक ऑर्डर्ड पेयर है जो किससे बिलोंग करता है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन c से बिलोंग करता है। बट x comma y इज आर्बिट्रेरी, मतलब जो एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से बिलोंग करता है, वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी से भी बिलोंग करता है। देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है, इज विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हमने पहले क्या प्रूव किया था, जरा ध्यान से देखो। हमने ये पहले प्रूव किया था कि ए क्रॉस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और अभी हमने उल्टा प्रूव किया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। ये दोनों एक दूसरे के सबसेट अगर है तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we can say that a cross b intersection a cross c is equal to a cross b intersection c, a क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल भी है। तो ये तुम्हें करना है अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में, दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, ये इसका पूरा प्रूफ जो मैंने अभी किया। ऐसा और एक क्वेश्चन है, प्लीज बी केयरफुल इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। For any three sets A, B, C, prove that A cross B minus C is equal to A minus B minus A cross B minus A cross C। तो मैं तुम्हें एक रोड मैप दे देता हूँ, ये तुम खुद ट्राई करो प्लीज। पहले तुम्हें एक आर्बिट्री ऑर्डर्ड पेयर लेना। सो लेट x कॉमा वाई बिलोंग टू, LHS को बिलोंग करवाना है इसको, A क्रॉस B माइनस C। ठीक है, पहले इसको LHS से बिलोंग करवाया। अब क्या करना है तुम्हें, अभी इसको वर्ड फॉर्म में लिखना। वर्ड फॉर्म में मतलब ये जो क्रॉस है इसकी जगह पे एंड डाल देना। सो x, अच्छा, और इसको ओपन कर देना है। तो x बिलोंग्स टू, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a
एंड y बिलोंग्स टू b माइनस सी, राइट। उसके बाद ये जो b माइनस सी है उसको सिंप्लीफाई करना, तो तुम लिखोगे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b कॉमा y डज नॉट बिलोंग टू c। सही है ना, b माइनस सी तो वही होता है जो एलिमेंट b से बिलोंग करता है लेकिन c से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग टू c, ऐसे हमने लिखा। अच्छा, अभी इसको थोड़ा सा तुम्हें स्ट्रेटेजिकली अरेंज करना है, मतलब देयरफॉर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ये एक पेयर हो गया, एंड बीच में एंड डाल देना है, एंड x बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c, y डज नॉट बिलोंग टू c, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि x कॉमा वाई, देयरफॉर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b, बिलोंग्स टू a क्रॉस b एंड x कॉमा वाई डज नॉट बिलोंग टू a क्रॉस c, क्योंकि x a में बिलोंग करता है, y c में बिलोंग नहीं करता है, तो x कॉमा वाई a क्रॉस c में बिलोंग नहीं करेगा। सही है ना, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देयरफॉर x कॉमा वाई बिलोंग टू a क्रॉस b माइनस c, क्योंकि जो a क्रॉस मेरी गलती है, x कॉमा वाई बिलोंग टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, बिल्कुल सही है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। सो x कॉमा वाई तो आर्बिट्री है, इसका मतलब क्या है कि a क्रॉस b माइनस c, therefore a क्रॉस b माइनस c is a subset of a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। अब वैसे ही तुम्हें कन्वर्सली वाला दूसरा जो मैंने बताया था वो ट्राई करना है कि कन्वर्सली लेट x कॉमा वाई बिलोंग टू दिस वन, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, फिर उसको सिंप्लीफाई करते करते ये दोनों को एक दूसरे के सबसेट प्रूव करना है, और फिर दोनों को सिंप्लीफाई करने से यू विल गेट योर आंसर, यू शुड गेट योर आंसर, ठीक है। सो यस, दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट। इसका आंसर देख लो एक बार। इसके बाद और एक क्वेश्चन है जो सिमिलर है, वैसा ही टाइप का है, तो मैं ये स्किप कर रहा हूँ, एंड दैट्स योर फर्स्ट पार्ट, और उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। सो आई होप दैट तुम्हें इससे आइडिया तो आ ही गया होगा कि हॉट्स के क्वेश्चन कैसे हैं, जो कुछ कुछ क्वेश्चंस हॉट के हैं, जनरली ऑर्डर्ड पेयर में इतना ज़्यादा इलाबरेट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हैं हॉट्स के जो हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2A, इसके अंदर टोटल मिला के कुछ 25 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन देता हूँ मैं तुम्हें, इसमें ये होमवर्क हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं फिजिक्स का वीडियो डालूंगा, फिजिक्स और मैथ्स का ऑल्टरनेट वीडियो मैं डालता रहूँगा, ठीक है। केमिस्ट्री का भी अभी मैम वीडियोस दे रही है तुम्हें, सो इट्स गुड दैट यू गाइज हैव गॉट लॉट ऑफ वर्क। तो प्लीज़ मुझे ग्रुप में भी तुम डिस्कस करो, बताओ यार। एक तो हमने अच्छी चीज़ की है ग्रुप में कि जो भी डाउट्स है आप लोग ग्रुप्स में सीधा पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप में एक दूसरे के साथ डिस्कशन फ्री रखा है हमने, ठीक है। अगर ये लॉकडाउन नहीं भी होता तो भी मैं ये करता, बिकॉज इससे ये होता है कि एवरीबडी कैन शेयर ईच अदर्स पर्सपेक्टिव एंड वर्क, और ये 11-12 में बहुत खास हो जाएगा, काम का हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करने हैं, we don't have to remain stuck with the simple kinds or the difficult kinds, variety of problems करना है, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग जितना एक्सपोजर हमारा ज़्यादा होगा अलग अलग क्वेश्चंस के साथ, उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो उसकी वजह से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादा डाउट्स भी आएंगे, उसको ईजिली और सिंपली सॉल्व करने के लिए हमें एक दूसरे की हेल्प लेनी चाहिए, सो दैट वी आर द बर्डन इज नॉट ओनली ऑन द टीचर अलोन, ठीक है। सिर्फ टीचर के ऊपर अगर तुम सारा डाउट सॉल्विंग का बर्डन डाल दोगे तो सिलेबस फिर आगे नहीं जाएगा, और सिलेबस बहुत मैसिव है, ठीक है। सो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे, वी आर गोइंग टू सॉल्व द डाउट्स फॉर ईच अदर, जो भी हो सकता है, और जो कॉमन डाउट्स बच जाएंगे वो मैं देखूंगा, ठीक है। तो फिजिक्स में जो कॉमन डाउट्स है क्वेश्चन नंबर 6 और 10 शायद, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, और नेक्स्ट पार्ट में भी हमें आगे बढ़ना है। सो सिलेबस आई थिंक ठीक जा रहा है हमारा,
काफ़ी तुम सुन रहे होंगे कि दूसरे तुम्हारे जो फ्रेंड जो इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन किया है वो लोग तो बहुत आगे निकल गए हैं। निकलने दो आगे, हम कोई रेस में नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास तुमने ज्वाइन किया है तो प्लीज़ एक बात समझ लेना कि वी आर नॉट इन एनी कम्पिटिटिव रेस एज ऑफ नाउ। वो स्टेज हमारा आएगा जब हम लोग कुछ अकम्प्लिश कर लेंगे। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है सीखने की। तो पहले जो बेसिक्स है ना उसको स्ट्रांग बनाएंगे हम लोग, फिर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस को लेवल अप करेंगे, बट आराम से धीरे धीरे। तो बेसिक्स को स्ट्रांग रखना हमारा सबसे पहला ज़रूरत है। उसके लिए होमवर्क को टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी कुछ लोग होमवर्क टाइम पे सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं मैसेज दे रहा हूँ, होमवर्क टाइम पे सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम डायरेक्ट ड्रीम देख रहे हो कि मैं आईआईटी क्रैक करूंगा, नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आईआईटी क्रैक करने के लिए, तो बेस्ट ऑफ लक। आप कोई और क्लास ज्वाइन कर लो जो बोलता है कि नहीं ये कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, डायरेक्टली हम लोग एमसीक्यूज पे जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता होगा होगा तो कहीं और होता होगा, मैं तो ऐसे नहीं कर पा सकता, ठीक है। सो आप लोग डिसाइड करो, बट आई आई बिलीव के सब लोग अब एडजस्ट हो चुके हैं, एंड देन नाउ वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबमिटिंग द होमवर्क इन टाइम एंड हेल्पिंग आउट ईच अदर सो दैट द सिलेबस कैन गो हेड स्विफ्टली। एंड कुछ भी इश्यूज है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।